हेलो फ्रेंड्स, आईएएस यूपीएससी 2017 और स्टेट लेवल के पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये हमारी करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स की ऑथेंटिक सीरीज है। आज डेट है 30 अगस्त 2016, 30 अगस्त 2016। कल आई मीन टू से ऑन यस्टरडे ऑन 29 ऑफ अगस्त 2016, 29 अगस्त 2016 को द हिंदू के फ्रंट पेज पर एक न्यूज है। द हिंदू में न्यूज आई है, इसरो फ्लाइट टेस्ट स्क्रैमजेट इंजन जॉइंस एलीट क्लब, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम। हम देख रहे हैं कि इस 29 अगस्त 2016 की न्यूज के बाद अगले दिन अर्थात आज 30 अगस्त 2016 को द हिंदू का एडिटोरियल इसी टॉपिक पर आया है, इसरोज स्क्रैमजेट ऑन कोर्स। सो आइए इस न्यूज को, जो कि 29 अगस्त की है और आज 30 अगस्त 2016 के अपने एडिटोरियल को, जो स्क्रैमजेट इंजन पर ये दोनों न्यूज और एडिटोरियल हैं, आइए इनको एक साथ डिस्कस करते हैं। पहले हम न्यूज से और एडिटोरियल से सीधे गो थ्रू होंगे और उसके बाद जो उसके टिपिकल वर्ड्स हमें लगेंगे कि वो मुश्किल है, उनको वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करेंगे, अर्थात समझेंगे वहीं की वहीं हाईलाइट करके, और उसके बाद हॉलिस्टिकली इस न्यूज को और एडिटोरियल को जोड़ करके और इसकी जो अगर यदि कोई बैकग्राउंड है उसको भी साथ लेकर के होलिस्टिकली इन सब चीजों को तैयार करेंगे। आइए पढ़ते हैं। इंडिया ऑन संडे became only the fourth nation to flight test a scramjet engine, a technology that scientists claim could change the way space travel is undertaken in the future. Though the full development of the engine for an air-breathing propulsion system that significantly reduces the amount of fuel needed to fire up engines in a rocket is decades away. It is a significant milestone for the ISRO, a top official said. At 6 a.m., the ISRO conducted its first experimental mission of the engine from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. It used a advanced technology vehicle ATV, a sounding rocket, for the test at supersonic conditions. The ATV, advanced technology vehicle with the scramjet engines, weighed 3,277 kg at lift off. This is a first baby step but important step for the future of technology in India. Dr. K. Sivan, Director, Vikram Sarabhai Space Center, said here. The scramjet engine works on air breathing philosophy that reduces the amount of oxidizer to be carried along with the fuel, bringing down its launch costs. Designed by ISRO, it uses hydrogen as fuel and oxygen from the atmospheric air as the oxidizer. This experiment was conducted for a 5-second duration at 20 km. To carry the engines, we used a special two-stage sounding rocket. At the beginning of the 5 seconds, the engine's entry was opened and fuel was injected. Then the engine ignited automatically. The injection of fuel lasted for 7 seconds. During this duration, the burning happened and the flame sustained. The result is exactly what we wanted, Dr. Sivan said.
He said the experiment showed that the nation could develop such crucial and complex technology useful for future space transportation system, either for launch vehicles or even for aerospace planes. The scramjet engine technology, when fully developed, could even help bring down intercontinental travel time, according to Dr. Sivan. It could be used for launch vehicles, that is rockets, space planes, transportation and missiles, he said. The VSSC director further said it would be better to design a new launch vehicle for using this propulsion system. The shaping will be such that whenever thrust you are whatever thrust you are getting from this engine should be more than the drag of the vehicle, Dr. Sivan said. The total cost of the test was only 3 crore, while the total project cost till now was rupees 35 crore, Dr. Sivan said. आइए अब इसको देखते हैं, इस सारे में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, किन पे फोकस किया है द हिंदू ने। तो सबसे पहली बात है कि एक स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी का फ्लाइट टेस्ट इसरो ने किया है और इस प्रकार से इसरो जो है उसके इस सफलता से, इसरो की सफलता से भारत एलीट क्लास में, एलीट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केवल भारत से पहले केवल 3 देश हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल है, वो है अमेरिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन। भारत चौथा देश बन गया है जो इस प्रकार की स्क्रीमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट जिसका सफल हुआ है। और ये एक प्रकार का एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम है। प्रोपल्शन का मतलब होता है, प्रोपल्शन का अर्थ है आगे बढ़ाना, प्रोपेल, यानी कि जैसे आपने देखा हेलीकॉप्टर में प्रोपेलर्स पंखों की तरह के लगे होते हैं, तो वो पंखों की तरह के प्रोपेलर्स जो है वो हवा को चीर करके आपके एरोप्लेन को आगे ले जाते हैं, कैरी करते हैं, एक प्रकार से उसको तेजी से आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसको आप कहेंगे प्रोपल्शन। ये जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है इसका जो व्यवहारिक नाम दिया गया है आम बोलचाल की भाषा में वो है एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम, हवा में सांस लेने वाला प्रोपल्शन सिस्टम। इस न्यूज में द हिंदू में जो डिस्कस किया गया है कि जब भी आप कोई रॉकेट के द्वारा कोई प्रक्षेपण करते हैं, कोई लॉन्च करते हैं जो हवा में काफी देर तक रहे और उसके बाद वो किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच करके अपना काम पूरा करे, तो इस प्रकार की जो भी लॉन्चेज की जाती हैं रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसमें क्या होता है कि जो फ्यूल है उस फ्यूल के साथ ऑक्सीजन सप्लाई करने, क्योंकि कंबस्शन फ्यूल है तो उसका कंबस्शन होना जरूरी है, उसका दहन होना जरूरी है और दहन बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा। तो इसलिए कोई ऑक्सीजन का स्रोत, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर टाइप में कोई ऑक्सीजन का भंडार भी उस फ्यूल टैंक जहां होता है उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसा बनाना पड़ता है। ऐसी मतलब प्रक्रिया रखी जाती है कि जहां फ्यूल टैंक है उसी के आसपास कहीं ऑक्सीडाइजेशन का भी सोर्स हो, ऑक्सीजन का भी कोई स्रोत हो जिसके कारण कंबस्टन जो है वो एक फुल कंबस्टन हो सके, आधे अधूरे कंबस्टन के बजाय। तो और फ्यूल का पूरा एफिशिएंट यूज हो सके, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो ऑक्सीडाइजर जो है वो साथ ही अटैच किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीडाइजर के लिए जो ऑक्सीजन का सोर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा इस प्रकार का यदि अटैच किया, एम्बेड किया जाएगा तो इस एम्बेडमेंट करने के लिए काफी कॉस्टली ये पूरा मैकेनिज्म होता है, बहुत खर्चीला मैकेनिज्म होता है। तो ये जो इसरो ने अभी हाल ही में टेस्ट किया है स्क्रैमजेट इंजन का, उसमें क्या हुआ है कि
केवल हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को इसमें एक फ्यूल के तौर पे यूज किया गया है, और ऑक्सीजन का जो एम्बेडेड स्रोत होता है, जो पहले उस व्हीकल में ही दिया जाता था, ऑटोमेट एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल के अंदर ही उसको एम्बेडेड कर दिया जाता था, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है ऊपर जाते समय हवा की ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और इस प्रकार से इसको एयर ब्रीदिंग इसलिए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार हम मनुष्य लोग जो है ब्रेथ ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, इसी प्रकार से हमारा ये जो इसरो का जो ये स्क्रैमजेट इंजन है, ये भी जब ऊपर जाता है तो वायुमंडल की प्राकृतिक ऑक्सीजन को इनहेल कर लेता है एक प्रकार से, और इसलिए ऑक्सीडाइजेशन के लिए इसमें कोई वैकल्पिक और विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इससे इसकी लागत काफी कम हो जाती है, काफी सस्ता पड़ता है। आइए इसको थोड़ा सा और फॉर्मली देखते हैं न्यूज को, इसमें क्या क्या पॉइंट्स कहे गए हैं। स्क्रैमजेट इंजन की ये टेक्नोलॉजी जो है आने वाले समय में मनुष्य किस प्रकार से स्पेस ट्रेवल्स को पूरा करेगा, परफॉर्म करेगा, इस प्रकार की जो विकासात्मक गतिविधियां हैं उसका जो तौर तरीका है, जो आजकल की प्रैक्टिसेस हैं, भविष्य में इन सब एक्सपेरिमेंट्स के सफल होने के बाद निश्चय ही वो आउटडेट होकर के एक नए रूप को प्राप्त हो जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी के साथ नए रूप को एक नया चेहरा सामने आएगा। सब प्रकार की प्रक्रियाएं और प्रैक्टिसेस जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अडेप्ट की जाती हैं, जो अपनाई जाती हैं, उनको धीरे धीरे ये क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर एक कदम माना जा रहा है, इस स्क्रैमजेट इंजन का विकास करना इसरो के द्वारा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि यद्यपि इसरो ने बताया कि यद्यपि एक फुल फ्लेज इंजन का विकास जो है अभी दशकों बाद हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये कि छोटा सा बेबी स्टेप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार के अपेक्षा थी उसी प्रकार के रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सफल हुए हैं या सफल नहीं हुए हैं। और आगे बताया गया है कि इसरो ने ये पहला एक्सपेरिमेंटल ट्रांसमिशन जो है जिसको हाथ में लिया था उसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है, और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल का प्रयोग किया गया था, क्योंकि एक्चुअली आप समझ रहे हैं कि जब भी आप कोई प्रक्षेपण करते हैं तो आपको कोई ऐसा रॉकेट चाहिए होता है, और वो रॉकेट एक एडवांस मतलब एक व्हीकल के तौर पे होता है, ठीक है। जैसे PSLV, सबके आखिरी में जो ये V अक्षर है ये व्हीकल को डिनोट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल एक ऐसा साउंडिंग रॉकेट है, एक ऐसा साउंड करता हुआ जाता है ऊपर की तरफ, इस प्रकार का रॉकेट है, साउंडिंग रॉकेट है। और इस साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल रखा गया है, इसके माध्यम से ये टेस्ट कराया गया सुपरसोनिक कंडीशंस में। ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि की जो चाल है, उससे ये हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल आकाश में जाता है। और इसके अलावा जो ATV है, इसके ऊपर ATV पर माउंट करके स्क्रैमजेट इंजन जिसका वजन जो है 3277 किलोग्राम था, उसको माउंट करके रॉकेट के द्वारा, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल रॉकेट के द्वारा स्क्रैमजेट इंजन को यानी कि माउंट करके ऊपर उठाया गया, प्रक्षेपित किया गया, यानी कि आकाश में भेजा गया, ठीक है। तो दो चीजें जरूरी है याद रखनी, एक तो जो रॉकेट प्रयोग किया गया उसका नाम ATV है, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल। दूसरी बात है कि स्क्रैमजेट इंजन का वजन जो कि इस पर माउंट किया गया वो है 3277 किलोग्राम लिफ्ट ऑफ के समय, ऊपर उठने के समय, ठीक है। जब रॉकेट ऊपर उठा उस समय इसका ये वजन था। दिस इज द फर्स्ट बेबी स्टेप बट इम्पोर्टेंट, सेड के सीवान, डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। तो उन्होंने बताया, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष हैं,
डायरेक्टर हैं के सिवान, उन्होंने बताया कि ये एक छोटा स्टेप है लेकिन महत्वपूर्ण है। स्क्रैमजेट इंजन जो है हवा में सांस लेने की के दर्शन पर आधारित है, हवा में सांस लेने के सिद्धांत पर आधारित है। और ये जो है जो ऑक्सीडाइजेशन के लिए ऑक्सीडाइजर प्रयोग में लाया जाता है, उसकी मात्रा को काफी घटा देता है और इसके कारण से जो लॉन्च करने की जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है, काफी सस्ता पड़ता है लॉन्च करना। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि तो ऑक्सीडाइजर जो होता है वो फ्यूल के साथ साथ ही कैरी किया जाता है, फ्यूल के साथ ही ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ऑक्सीडाइजर का स्रोत भी। और इसरो ने ये जो डिजाइन किया इसमें हाइड्रोजन को ईंधन के तौर में प्रयोग किया और ऑक्सीजन जो है उसने सीधे वायुमंडल के माध्यम से जो है इनहेल कर ली, एक प्रकार से ग्रहण कर ली, ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 5 सेकंड के लिए किया गया था और 20 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद ये 5 सेकंड के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, जो सफल रहा। और इंजन्स को कैरी करने में हमारा रॉकेट बिल्कुल सफल रहा है। और इसमें 2 स्टेज साउंडिंग रॉकेट यूज किया गया था, यानी कि जो हमारा ये जो रॉकेट है एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल, ये एक 2 स्टेज साउंडिंग रॉकेट है, ये याद रखिए। और अब आगे डिस्कस करते हैं। शुरुआत में 5 सेकंड के लिए इंजन की जो एंट्री है वो खोली गई और उस इंजन की एंट्री के माध्यम से ईंधन को अंदर झोंक दिया गया, ईंधन को अंदर इंजेक्ट कराया गया। और इंजेक्ट कराए जाने के बाद यानी कि ईंधन को अंदर प्रवाहित किया गया उस ओपनिंग से, जो कि एक ओपनिंग खोली गई थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए। और उसके बाद इंजन जो है उसने अपने आप से इग्निशन जो है वो पकड़ लिया, ऑटोमेटिकली इग्निशन हो गया। चिंगारी मतलब कि आप कहना चाहिए कि स्पार्किंग जो है उसको कैच करके इग्निशन की गतिविधि जो है वो पूरी हो गई इंजन के अंतर्गत। और इंजेक्शन ऑफ फ्यूल जो है, जो फ्यूल का ईंधन का प्रवाह अंदर की ओर था वो 7 सेकंड तक बना रहा। इसके बाद ये है कि इस 7 सेकंड की अवधि के दौरान जो है बर्निंग हुई, दहन की गतिविधि हुई, दहन हुआ, कंबस्शन हुआ, एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। और इसके बाद जो फ्लेम्स हैं, जो ईंधन के द्वारा दहन होने के बाद जो ज्वालाएं हैं, लपटें हैं, वो लपटें जो हैं बनी रही, वो बीच में रुकी नहीं, लपटें जो हैं जारी रही, जो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट है। और इसलिए जो कुछ चाहा गया था, जो इच्छित था इस एक्सपेरिमेंट से, वो सभी लक्ष्य पूरे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। मिस्टर सिवान ने बताया कि इसके कारण से देश जो है महत्वपूर्ण और जटिल तकनीकी वाले भविष्य के स्पेस ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आकाशीय परिवहन तंत्र और लॉन्च व्हीकल्स, इस प्रकार के विशेष रॉकेट्स, और साथ ही साथ स्पेस प्लेन्स, स्पेस में जाने के लिए वायुयान, इस प्रकार से आप कह सकते हैं स्पेस प्लेन्स को जो है डेवलप कर सकता है भारत इस टेक्नोलॉजी के सफल होने के बाद। स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी तब इससे ना सिर्फ ये जो ऊपर बताया हमने कि एक जटिल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से आगे फ्यूचर में जो आकाशीय परिवहन तंत्र है उसमें सुधार आएगा, लॉन्च व्हीकल्स के बनाने में उसकी कॉस्ट में कमी आएगी, लॉन्च व्हीकल्स के निर्माण की कॉस्ट में कमी आएगी। और एरोस्पेस प्लेन्स जो हैं, यानी कि एरोस्पेस प्लेन्स का मतलब है कि अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के अंदर घूमने के लिए जो ब्रह्मांडीय प्लेन्स, स्पेस प्लेन्स जो हैं उनको बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेवल टाइम, जो अंतर महाद्वीपीय एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने में जो ट्रेवलिंग का टाइम है, यात्रा का समय है, वो बहुत कम हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। और इसके अलावा रॉकेट्स के निर्माण में इसका प्रयोग किया जा सकता है।
तो वीएसएससी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आगे बताया कि ये बल्कि ये अच्छा होगा। उनसे पूछा गया कि क्या किसी एग्जिस्टिंग जो विद्यमान प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज हैं, विद्यमान प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, क्या उनमें ही आधारभूत सुधार किए जाएंगे। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यद्यपि सुधार करना उतना अच्छा नहीं रहेगा, जितना अच्छा ये होगा कि इसके लिए यानी इस टेक्नोलॉजी के लिए नए प्रकार का बिल्कुल नए सिरे से एक नवीन लॉन्च व्हीकल बना लिया जाए इस टेक्नोलॉजी के अनुरूप नए सिरे से। द शेपिंग विल बी सच दैट वेदर वट एवर थ्रस्ट यू आर गेटिंग, और इसमें जो मूल सिद्धांत होगा प्रोपल्शन का, एयर प्रोपल्शन सिस्टम का, उसमें ये होगा कि जो थ्रस्ट आपको प्राप्त करना चाहिए इंजन के द्वारा, इंजन जब चलता है, इंजन जब स्टार्ट होता है तो उसका इंजन का जो थ्रस्ट होता है वो थ्रस्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए ड्रैग ऑफ द व्हीकल से, ठीक है। क्योंकि व्हीकल अपने बोझ के कारण और अपने आकार के कारण, अपने द्रव्यमान और भार के कारण, वैज्ञानिक टर्म्स में बात करें तो द्रव्यमान और भार के कारण हर एक व्हीकल जो है वो नीचे की ओर ड्रैग होता है। तो जो ड्रैग होता है व्हीकल का, उसकी तुलना में यदि जो थ्रस्ट है उसकी मात्रा अधिक होगी तभी आपका व्हीकल जो है ऊपर की ओर मूव करेगा। सो इस प्रकार से ये जो टोटल कॉस्ट है ये काफी कम आई है। इसमें जो टेस्ट है इसका स्क्रैमजेट इंजन का, उसमें 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जबकि पूरे प्रोजेक्ट में 35 करोड़ रुपए का खर्च जो है अभी तक आया है। इस प्रकार ये न्यूज हमारी यहाँ पूरी हो गई है और इसके अगले पार्ट में हम 30 अगस्त 2016 का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जिसका द हिंदू में हेडिंग है इसरोज स्क्रैमजेट ऑन कोर्स। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर अपनी वीडियो कंक्लूड करते हैं ये वाली, और नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि इसरो के स्क्रैमजेट इंजन पर जो एडिटोरियल है वो डिस्कस किया जाएगा, उसको जरूर देखें। इसरोज स्क्रैमजेट ऑन कोर्स, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।